Hi all, good day. Let's see the next topic of this lecture, that is crystal structure, crystal lattice, basis, unit cell, and what are the different types of unit cell. Let's see what is meant by crystal structure. The ordered three-dimensional arrangement of particles in a crystal is described by using two terms, namely lattice and basis. The three-dimensional arrangement of particles in a crystal, that is determined by the lattice and basis which forms the crystals. यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो जो डिस्क्राइब किया जाता है दो टर्म से, जिनको हम लैटिस बोलते हैं और दूसरा है बेसिस. लैटिस और बेसिस मिला के हमें मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब ये लैटिस क्या है, बेसिस क्या है, लैटिस क्या है, बेसिस क्या है, वो हम देखने वाले हैं. Lattice is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array. Lattice is what? It is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array. Means that is like this: 1, 2, 3, like this. This. This is what? This is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional array. Three-dimensional periodic array. That is nothing but what? Lattice. These points are arranged in a geometrical arrangement. Means ये जो points है ये points same distance पे होंगे. This point and this point is at same distance. This point and this point is at same distance. This point is at same distance. दोनों का nature कैसा है? Same है. Means the surrounding of these points will be same. This arrangement is nothing but what? The arrangement of these points is nothing but what? Lattice. तो इसको हम बोलेंगे lattice. Now the crystal structure is obtained by attaching a constituent particles to each of the lattice points. अब ये crystal structure कैसे form होगा? Attaching these lattice points by the attaching the constituent particles to each of the lattice point. इससे crystal structure क्या होगा? Obtain होगा. Such constituent particles that are attached to the lattice point form the basis of the crystal lattice. And crystal lattice is also called as space lattice of the crystals. Crystal lattice को हम क्या बोलेंगे? Lattice of the space lattice of the crystal. Space lattice of crystal. Crystal lattice को हम बोलते हैं space lattice of crystal. Let's see the deeply what is a crystal structure, how the crystal structure is formed. You can see this is what? This is the geometrical arrangement of points जिसको हम lattice बोलते हैं. And this is the basis. ये क्या है? ये basis है. Basis मतलब what? The atoms, ions and molecules like this. These particles are placed on these particles. ये जो बेसिस है मतलब ये जो पार्टिकल्स है, ये जो बेसिस है, जो पार्टिकल्स है बेसिस, हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर, इन दिस लैटिस पॉइंट्स के ऊपर. दीज आर व्हाट? दीज पॉइंट्स आर व्हाट? दीज पॉइंट्स आर लैटिस पॉइंट्स. ये पॉइंट्स क्या है? लैटिस पॉइंट्स. लैटिस पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं लैटिस क्रिस्टल, और दैट इज़ अ लैटिस. और ये जो बेसिस है इस लैटिस पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं? प्लेस करते हैं. लैटिस प्लस बेसिस आपको मिलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यू विल गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दिस इज अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्या किया? ये जो बेसिस था, बेसिस मीन्स द पार्टिकल्स प्लेस ऑन दिस लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, दिस लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज ज्योमेट्रिकली. दैट इज नथिंग बट दिस लैटिस. यहाँ पे इस पॉइंट्स के ऊपर हमने इस बेसिस को क्या किया? पुट किया, प्लेस किया.
और जो हमको स्ट्रक्चर मिला उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज अ यूनिट सेल? अब यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली फॉर्म कैसे होगा? बाय द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मिला के टोटल आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब यूनिट सेल कैसे? लेट्स सी दैट। दिस इज अ यूनिट सेल, यू कैन सी। ये क्या है? ये पॉइंट्स थे, लैटिस पॉइंट्स। ओके, लैटिस पॉइंट्स दीज आर अरेंज ज्योमेट्रिकली, इट फॉर्म्स लैटिस। यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्या किया? वी पुट द बेसिस एंड इट फॉर्म्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। मतलब यू कैन सी इन दिस फिगर, ये दिस इज कंप्लीट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये छोटा जो पार्ट दिख रहा है स्ट्रक्चर यूनिट, ये क्या हो गया? यूनिट सेल। दिस इज व्हाट? यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, यहाँ इसके बाजू में भी सेम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब ये जो यूनिट सेल है इसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। सेम यूनिट सेल यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होंगे, उसको अटैच होंगे और उससे आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो अभी ये जो एक यूनिट सेल है वो दूसरे यूनिट सेल के साथ उसके एजेस, सरफेस जो है वो शेयर करता है। ये जो एक यूनिट सेल है उसको अटैच दूसरे जो यूनिट सेल्स है उनके साथ वो क्या करता है, उसके सरफेसेस, एजेस वो क्या करेगा, और फेसेस, सरफेसेस, एजेस एंड फेसेस वो उसके साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। दिस इज अबाउट द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज अ यूनिट सेल। लेट्स सी द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो डायमेंशंस है उसके डायमेंशंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल्स एंड डायमेंशंस, हाउ द एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल्स आर डिफाइंड। लेट्स सी दैट। यहाँ पे ये दिस इज व्हाट? दिस इज अ यूनिट सेल। ये क्या है? एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल की जो साइड्स है, दिस साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। Okay, these A, B, C these are the dimensions of the sides of unit cell. Then A और C के बीच में एंगल है बीटा, C और B के बीच में एंगल है अल्फा, और A और बीच में आपका एंगल है गैमा। मीन्स these sides, these dimensions A, B, C are divided here by the angles. Means in between these A and C sides the angle is beta, B and C the angle is alpha, A and B the angle is gamma. So that alpha, beta, gamma are the angle between these axes. Okay, these are the axes. This is y axis, x, and this is z axis, like this we can say. These are the axes and coordinates of the unit cell. These axes are represented by A, B and C, and the angle between these axes is alpha, beta and gamma. Okay, so that here this is about the dimensions of unit cell. Let's see the types of unit cell. अभी types of unit cell कौन से? There are 4 types of unit cell. The first type is primitive or simple unit cell. The first type is primitive or simple unit cell. अभी प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल किसको बोलेंगे? दिस इज शॉर्टली ऑल्सो नोन एज SCC और SC भी बोलते हैं, S.C. ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लाइक दिस. इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली. ओके, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर. कॉर्नर्स को आपको देखने को मिलेंगे. You can see in this figure also. This is what? Simple unit cells.
these are the corner, this is 3-dimensional structure, corner particles you can see here. And in this figure also, only the corner particles are there present in a simple cell. This, these are what? These are the corner particles present in a simple cubic cell. Another figure you can see like this 3-dimensional structure of this simple cubic cell. Corner particles are there only 1 2 3 4 1 2 3 4 like this. This is the simple cubic unit cell. Then second is body centered cell, body centered unit cell. In this type of unit cell, one constituent particle is present at the center of its body in addition to the corner particles. यहाँ पे क्या होंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में, यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देयर आर 8 कॉर्नर पार्टिकल्स विल बी देयर, कॉर्नर पार्टिकल्स, और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा. दैट सो दैट इट इज नोन एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. यू कैन सी हियर इन दिस फिगर. दिस इज व्हाट? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. एक कॉर्नर पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरा जो है दैट इज एट द बॉडी सेंटर. इट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के अंदर है. सो दैट इट इज नोन एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अनदर फिगर यू कैन सी दिस. This is what you can see, the corner particles plus this body centered unit cell. Body centered particles, body centered particles is present there. Here also this is body centered unit cell. The body particles are also present and corner particles are also present. This is known as a body centered unit cell. The next type, that is a face centered unit cell. So this unit cell consists of particles at the center of each faces in addition to the corner particles. मतलब corner particles के साथ जो faces है बॉडी के, उस all the faces के ऊपर क्या हो गए? These particles प्रेजेंट होंगे. ये जो particles है कॉर्नर को भी प्रेजेंट होंगे और वो बॉडी के फेसेस के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे. जैसे कि यू कैन सी इन दिस फिगर, दीज आर द पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स. एक कॉर्नर पार्टिकल्स हो गए और ये फेसेस के ऊपर, इस ऊपर वाले फेस के ऊपर एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे. सिमिलरली यू कैन सी these 8 corner particles are there and these are the particles which are present at the faces. ये फेस के ऊपर, टॉप फेस के ऊपर, दिस फेस के ऊपर, देन इस फेस के ऊपर this present, along this face this is present, along this face this is present, then along this face this is present, then this face, ये पीछे वाला फेस यहाँ पे, this is present. Means here with corner particles यहाँ पे फेस के ऊपर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. यू कैन सी हियर कॉर्नर पार्टिकल्स एंड these are what? Face particles, particles on faces of the unit cell. Next type is base centered unit cell. अब ये base centered unit cell क्या है? This is also one of the type of unit cell. This unit cell consists of particles at the center of any two of its opposite faces in addition to the corner particles. अभी यहाँ पे you can see these are the corner particles which are present. There are 8 corner particles are present. इन कॉर्नर पार्टिकल्स के साथ ये जो अपोजिट फेसेस है, 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर, ये ऊपर का ले लो नहीं तो साइड का ले लो, दोनों में से कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. मतलब दिस फेस के ऊपर, ये फेस के ऊपर यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, दिस पार्टिकल लाइक दिस,
इस फेस के ऊपर, और नीचे उसके अपोजिट फेस के ऊपर, ये उसका नीचे वाला, दिस इज टॉप फेस एंड दिस इज बॉटम फेस। यहाँ पे आपको एक पार्टिकल्स देखने को मिलेगा एट द बॉटम फेस, दैट यू कैन सी। जैसे एट द टॉप एंड बॉटम अपोजिट फेसेस के ऊपर यहाँ पे जो पार्टिकल्स फेस प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल विद दिस कॉर्नर पार्टिकल्स। कॉर्नर पार्टिकल्स के साथ दो अपोजिट फेसेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस वाज अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल, crystal structure, lattice, and what is meant by basis, that we have seen in this lecture. Thank you.